Hello dear students, how are you? So I am Rita Kesharwani. Welcome you all in my physics class. So today we will be learning our chapter 13 of physics, that is motion and time. Actually it is chapter 13 of science and it is physics chapter, that is motion and time. In previous chapter I have explained you about measurement. So it was an introductory chapter, that how to measure time, how to measure distance and how to measure motion. So we will study in detail about it in this chapter. Okay, so let's know what is motion. Motion is the change in position of an object with time. I have already explained you what is motion. Look at this picture. There is a car, and when the car changes its position from point A to point B. Okay? For example, if the car is here, okay, and after few time the car changes its position from A to B, then it is called what? Motion. Okay? So, what is motion? Motion is the change in position of an object with time. There are different types of motion. They are, first, motion along a straight line, rectilinear motion. Okay? Example, motion of a car on a straight road, motion of a bus, motion of a train, like that. Second is your periodic motion. What is periodic motion? Motion of a pendulum. Okay? Look at this picture. This is motion in a straight line. Second is motion of a pendulum. So how a pendulum moves? A pendulum moves to and fro, like that. Okay? So this is called the motion of a pendulum. It is called what? Periodic motion. Third is circular motion. So look at the third picture. It is your circular motion. When you move in a circular path, then it is called circular motion. Okay? Now what is speed? So we have done what is motion. Second is what is speed. Speed means when you go by bus or when you go by car, then you ask your parents, मम्मा हम किस स्पीड से चल रहे हैं? ओके, मम्मा इस स्पीड से कार चलाइए, स्लो कीजिए, फास्ट कीजिए. सो दिस इज योर स्पीड. सो हाउ टू डिफाइन द स्पीड? Speed, the distance covered by an object. Okay, the distance covered by an object in a unit time is called the speed of the object. So the distance traveled by an object is, example, if a car covers a distance of 100 kilometers in 1 hour. अगर कोई कार आपकी 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है और अगर कोई बस आपकी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है? डेफिनेटली जो 1 आवर में 100 किलोमीटर चल रहा है बेटा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो 1 आवर में 50 किलोमीटर चल रहा है. बट अभी तो आपने इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 1 आवर में 100 किलोमीटर, 1 आवर में 50 किलोमीटर. बट अगर आपके पास कोई टिपिकल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना, 2756, है ना, एंड टाइम होगा आपके पास 23 आवर्स, then how to measure the speed? So there is a formula to measure the speed. Since the speed of most objects are not constant, the speed is average speed. Okay, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड क्या होती है? आपकी कांस्टेंट नहीं होती है. मीन्स अगर आपको मैं बोलूँ कि हम कार से जा रहे हैं, तो आप हमेशा सेम स्पीड पे तो नहीं चलोगे. आपकी स्पीड क्या होगी? वेरी होते रहेगी.
कुछ टाइम पहले वो 50 किलोमीटर से चल रही होगी कार, कुछ टाइम बाद 70 किलोमीटर से। तो हाउ टू मेजर, तो हम क्या निकालते हैं, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हर टाइम पीरियड पे क्या होती है, आपकी स्पीड चेंज होती रहती है। सो स्पीड इज इक्वल टू, look at this formula, this is the formula of speed. Speed is equal to total distance covered upon time taken. ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ाया था कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और यू कैन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने किससे मेजर किया, पहले मीटर और किलोमीटर और सेंटीमीटर। अब टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे, आपके टाइम की यूनिट क्या होती है, स्मॉल यूनिट होती है, जो बेस यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, सेकेंड। एंड मेनी मोर यूनिट्स आर देयर, जो आपकी लार्ज यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है आपकी, सॉरी, आवर, मिनट, एंड द बेस यूनिट इज सेकेंड। तो ये डिपेंड करता है, अगर हमें किसी हाई स्पीड को मेजर करना है बेटा, तो हमें आपकी बेस यूनिट सेकंड में हम नहीं लेंगे, हम किस में निकालेंगे, उसकी आवर में। अब आप कार की स्पीड को एक सेकंड में कितना ट्रेवल की नहीं निकालेंगे, आप कार की स्पीड को किस में मेजर करेंगे, इतने किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी मोशन। ठीक है, if the object है ना, if the speed of an object is constant, it is in uniform motion। अब constant speed से क्या मतलब होता है, देखिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी कार है, अगर वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है, ओके, 1 किलोमीटर इन 1 आवर, तो फिर अब सेकेंड आवर मतलब 2 किलोमीटर इन 2 आवर, देन 3 किलोमीटर इन 3 आवर। तो हर आवर में वो 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब उसकी स्पीड, उसकी मोशन कैसी है, एकदम यूनिफॉर्म है ना। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आवर में वो 2 किलोमीटर चली, तो सेकेंड आवर में उसको भी 2 + 2 मतलब 2 आवर्स के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए, 4 किलोमीटर। बट अगर वो इस स्पीड से नहीं चल रहा है, फर्स्ट आवर में तो वो 2 किलोमीटर चला, लेकिन 2 घंटे बाद वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 किलोमीटर। मीन्स फर्स्ट आवर का 2 किलोमीटर एंड सेकेंड आवर का 1 किलोमीटर। मीन्स उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नो डाउट। और हमारी भी स्पीड कैसी होती है, क्या हम हमेशा सेम स्पीड से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्या हमारी कार सेम स्पीड से चल सकती है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कुछ टाइम तक के अगर आपकी रोड है ना, कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम आपकी खाली रोड है, तब तो आप एक यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर सकते हैं। बट अचानक से या ब्रेकर आ जाता है या ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो हमें हमारी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, फास्ट होती है, फिर हम स्टॉप भी करते हैं। सो इट इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो अभी हमने स्टडी किया मेजरमेंट ऑफ मोशन, ठीक है, और स्पीड, कि हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ओके, टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग क्लॉक्स और वॉचेस। टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे, डेफिनेटली यू ऑल नो, यूजिंग क्लॉक्स और वॉचेस। क्लॉक्स एंड वॉचेस मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन। वाई पीरियोडिक मोशन, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। पीरियोडिक मोशन में आपकी जो मोशन होती है, पीरियड, एक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी क्लॉक है, ठीक है, 12 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का, ठीक है, 12 PM, देन आफ्टर
12 आवर्स, है ना। अगेन ये क्या हो जाएगी, फिर से आपका क्या आ जाएगा, पहले 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock अप टू 12 o'clock, ठीक है। और अगेन फिर उसी टाइम पीरियड से चलती रहती है। तो हर 12 आवर्स के बाद ये अपनी जो मोशन है उसको रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। व्हेन योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर वो अपनी पाथ को, अगर डिस्टेंस को, उसी पाथ को रिपीट कर रहा है, सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड योर पीरियोडिक मोशन। तो आपकी क्लॉक कैसे चल रही है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, बट किस टाइप से फॉलो कर रही है, हर 12 घंटे के बाद सेम पोजीशन में, हर 12 घंटे के बाद सेम पोजीशन में, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 PM से भी स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 1 PM अगेन 12 आवर्स के बाद वो फिर उसी पोजीशन में 1 o'clock पर ही आ जाएगी, ओके। सो this is in our modern time, है ना। we are using these type of clocks or watches. This is wall clock, table clock, watches, digital clock, okay. but in ancient times जब हमारे पास ये सब नहीं था बेटा, तब हम कैसे करते थे, then how to measure the time, एशियन टाइम्स में हम टाइम को मेजर करने के लिए आपने सुना होगा सैंड क्लॉक्स, ठीक है। एंड जो आपका जंतर मंतर में सन डायल्स होते हैं, सन टेम्पल इन कोणार्क, and one type of clock is there, that is water clock. So these are the clocks which were used in ancient times to measure the time, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता है कि वो सैंड है ना, आपकी जो सैंड की पिक्चर थी कि सैंड आपकी कितने आवर्स में, 12 आवर्स में ऊपर का सैंड ब्लॉक पूरा नीचे आ जाता है। तो आपको सैंड की कितनी अमाउंट ऑफ सैंड रखी हुई है उससे पता चलता जाएगा कि स्लोली स्लोली वो नीचे आ रहा है, मतलब 1 आवर 2 आवर ऐसे पास हो रहा है, ओके। वन बेस्ट एग्जाम्पल इज देयर कि आपका जो मून है बेटा, अगर आपको एक मंथ मेजर करना है तो आपका जो मून है हमेशा एक फुल मून कब दिखता है, 1 मंथ के बाद। आपके पास एक फुल मून है, ठीक है, आपने नाइट स्काई में फुल मून देखा, अब वहां से आप मंथ का फर्स्ट डे स्टार्ट कीजिए। अब उसके बाद मून क्या हो रहा है आपका, अगर फुल मून है तो धीरे धीरे उसका शेप रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा। 15 डेज के बाद आपका मून क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चला 15 डेज हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मून क्या हुआ, आना स्टार्ट हुआ, अगेन वो राइज होना स्टार्ट हुआ। अब मून का शेप क्या हो रहा है आपका, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो आप समझ जाएंगे 15 के बाद 16, 17, फिर से अगेन जब फुल मून आया तो 1 मंथ। तो ऐसे ही जो ये फुल मून के बीच का, 1 फुल मून के टू नेक्स्ट फुल मून के जो बीच का पीरियड होता है, दैट इज योर 1 मंथ, ओके। सो सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम किस टाइप की मोशन करता है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पेंडुलम का यूज हम मोस्टली किस में किया, आपने देखा होगा पेंडुलम किस में यूज होता है, आपकी क्लॉक में, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक्स होती है। सो लेट्स study. A simple pendulum has a small metallic bob suspended from a stand by a thread. ये जो नीचे वाला है इसे हम बॉब बोलते हैं, ये आपका थ्रेड है बेटा, ठीक है। और ये दिस इज द पिक्चर ऑफ योर सिंपल पेंडुलम, ओके। नाउ हाउ अ पेंडुलम मूव्स, दिस इज योर पोजीशन ए, ये आपकी ए पोजीशन है, ठीक है। और पेंडुलम कैसे मूव होता है आपका, यहाँ से यहाँ A to B, इस तरीके से ये पेंडुलम आपका कौन सी मोशन करता है बेटा, पीरियोडिक मोशन, ओके। सो इफ द बॉब इज टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, अगर बॉब को हम पकड़े और रिलीज करें धीरे धीरे तो ये स्लोली स्लोली मूव करता है टू एंड फ्रो। जो आपके पेंडुलम को ए पोजीशन बी पोजीशन, तो ए आगे जब जाता है तो उसको टू बोलते हैं, पीछे टू एंड फ्रो, दिस टाइप है ना, आगे पीछे, इसको हम और कौन सी मोशन बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन, ओके। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन,
Okay. So what is oscillation? When the bob moves from the mean position O to A. देखिए ये आपकी जो सेंटर वाली पोजीशन होती है आपकी, ये होता है मीन पोजीशन। फिर उसके बाद एक ए वाली पोजीशन में जाएगा और नेक्स्ट अगेन बी पोजीशन में। ये दोनों ए और बी क्या कहलाती हैं? आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो इस टाइप की आपके ए टू बी तक के, ठीक है, ए से जीरो से उसने ओ से स्टार्ट किया बेटा। कैसे स्टार्ट होगी? ओ से स्टार्ट किया, ए तक गया, अगेन बी में आया, ठीक है, और वापस, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जहां से स्टार्ट किया, ठीक है। सेकेंड वो ए तक गया, थर्ड वो वापस कहाँ आया? बी में आया, और वापस वो रिपीट कहाँ हो गया? अगेन आपका वन में। तो वन से ही स्टार्ट किया एंड वापस वो कहाँ गया? वन पोजीशन पे। तो आपकी एक कंप्लीट ऑक्सिलेशन ये पीरियड होता है पूरा। सो व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू ए टू बी एंड बैक टू ओ, मतलब आपको ओ से ही स्टार्ट करना है, ए पर जाना है, फिर बी पर जाना है और अगेन ओ पर। मतलब ए और बी दोनों कवर होने के बाद ओ से स्टार्ट होकर ओ पर ही जब एंड हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? आपका एक कंप्लीट ऑक्सिलेशन। ओके। सो when the bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and back to A, okay, it is called one oscillation. Okay. Time period. So what is time period, class? The time taken by the pendulum to complete one oscillation. ठीक है, आपका A से B अगेन पूरे जो एक ऑक्सिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन। ओके, नाउ दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी फॉर यू कि how to measure the time period of a simple pendulum. So just read, okay. Set up a simple pendulum with a thread of length about 1 meter. Move the bob to one side and release the bob. Measure the time taken to complete 20 oscillations. तो मैंने आपको बताया वन ऑक्सिलेशन कैसे होता है। अब आपको 20 ऑक्सिलेशंस का टाइम पीरियड काउंट करना है। ओके, यूजिंग अ स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। रिपीट द एक्टिविटी 3 times and record the observations. Find the time taken for one oscillation. The time period is nearly the same in all cases. Okay, for example, देखिए आपको 20 ऑक्सिलेशंस करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको वन ऑक्सिलेशन का टाइम नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वन ऑक्सिलेशन इतनी जल्दी सेकेंड और पार्ट ऑफ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाता है कि मुश्किल है हम एक सेकेंड को कैसे कैलकुलेट करें। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो अगर आपको 20 ऑक्सिलेशन, आप अपनी स्टॉप वॉच को एक टाइम पे सेट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जैक्ट 1 PM पे सेट कर दिया, ठीक है। अब हम सपोज एज्यूम करते हैं कि आपका पेंडुलम बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो 20 ऑक्सिलेशंस करने में इसको कितना, हम ऑक्सिलेशंस को तो इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब 20 ऑक्सिलेशंस करने में इसे लग रहे हैं 40 मिनट्स, ठीक है। तो 20 ऑक्सिलेशंस करने में कितना लग रहा है उसे? सपोज 40 सेकेंड्स लगे। अब आपको एक ऑक्सिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो 40 सेकेंड्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 20 से। तो कितना आ जाएगा आपका? 20 2 × 40। तो उसका टाइम पीरियड कितना आ गया? एक ऑक्सिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकेंड। अंडरस्टूड? कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? आपको अगर 20 ऑक्सिलेशंस का टाइम पीरियड पता है 40 सेकेंड्स, किसके लिए? 20 ऑक्सिलेशंस के लिए। और ऑक्सिलेशंस, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस कितने हैं? 20। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी फॉर यू, so you can do this activity at your home, okay, and complete the table.
unit of time and speed. So base unit or basic unit of time is second. The larger units of time are minutes, hours, etc. The basic unit of speed is meter per second. ठीक है, अभी अभी हमने स्टडी किया था कि आपकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल हुई है और कितने टाइम पे हुई है. सो इट इज कॉल्ड योर स्पीड. तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर. यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो तो आपकी स्पीड की यूनिट बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड द लार्जर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर. क्योंकि हम जो आपकी स्मॉल थिंग्स हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर टोर्टाइज की स्पीड मेजर करनी है तो टोर्टाइज तो बहुत ही स्लो स्पीड में आपका वॉक करता है. ठीक है, तो उसके मूवमेंट को तो हम मीटर पर सेकेंड और मिनट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फॉर एग्जांपल आपको कार की स्पीड मेजर करनी है तो मोस्टली, है ना, क्योंकि वो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सो हम कौन सी यूनिट को प्रेफर करेंगे बेटा, किलोमीटर पर आवर. लेकिन जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड, बेसिक यूनिट फॉर डिस्टेंस इज मीटर एंड बेसिक यूनिट फॉर मास इज किलोग्राम. ओके, नाउ अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये वाला एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. आपका पहले के टाइम पे जब क्लॉक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आपकी क्लॉक्स और वॉचेस नहीं आई थी, तब आप टाइम कैसे मेजर करते थे. सम एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स. तो देखिए ये आपकी पिक्चर्स बनी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, है ना. इसमें देखिए आप लोगों को ये जो पिक्चर दिख रही है, दिस वन, ओके, दिस इज योर सैंड क्लॉक. सो सैंड क्लॉक में देखिए यहाँ पर सैंड फिल है, तो सैंड स्लोली आपकी क्या होती है, नीचे आते जाती है. तो इसका मतलब टाइम आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है. और उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते थे, 24 आवर्स को मेजर करते थे. ओके, सो दिस इज योर सैंड क्लॉक, 12 आवर्स और 24 आवर्स टाइमिंग. ओके, सैंड क्लॉक एंड more measuring devices were water clocks and sundials. sundials आपने ये आपको जो सन की शेडोज बनती है, सन डायल्स है ना, सन की सनलाइट से जो उसके डायल्स, आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में देखा होगा कि वहाँ भी सन डायल्स है. एक कोणार्क में सन टेम्पल है, वहाँ भी आपके बहुत सारे क्या बने हुए हैं, डायल्स बने हुए हैं. तो दे रिप्रेजेंट जो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, हम भी ऐसे सोचते हैं जब आपका सनराइज होता है तो लाइटिंग या शेडो के अकॉर्डिंग हम टाइम गेस करते हैं ना कि इस टाइम हो रहा होगा. सनसेट के टाइम के अकॉर्डिंग ये शेडो कैसी होती है आपकी, एग्जैक्ट अगर मैं 12 PM की बात करूंगी तो हमारी शेडो कैसी बनती है, हमारे पैर के नीचे. तो उस टाइम के लोग भी इस तरीके से आपका टाइम कैलकुलेट या टाइम मेजर करते थे. ओके, सो नेक्स्ट इज one example for you. The speed of an object can be measured if we know the distance covered by the object and the time taken. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करनी है तो जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उसकी स्पीड पता है, आपको उसकी डिस्टेंस पता है. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में है कि if a car covers a distance of 100 kilometers in 2 hours, then the speed of the car is, तो डिस्टेंस कितनी आपकी 100 किलोमीटर्स, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन 2. ठीक है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर. सो 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, if we know the speed of the car and the time, we can find the distance covered by it. तो अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये देखिए ये स्पीड का फॉर्मूला है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड पता है और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं. और इसी तरीके से हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम.
टाइम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका सेम फॉर्मूला ही अगर आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे कि एक को दूसरे साइड ट्रांसफर करना, जो आप जानते होंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिए, तो आप इजिली, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला बस लर्न करके डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं एंड टाइम भी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर हर चीज बेस यूनिट में दी गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मीटर दिया गया है, डिस्टेंस की अगर यूनिट मीटर में दी गई है, तो टाइम आपका किस में चेंज करना होगा, सेकंड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किलोमीटर पर सेकंड निकाल दिए, आपको किलोमीटर पर आवर, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, सभी को एक ही यूनिट, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए। ओके, यू कैन ऑल्सो refer my video of measurement that is in the playlist of class 7th physics measurement chapter। उसमें आपको जो आपकी यूनिट्स है, ठीक है, कौन से सिस्टम में कौन सी यूनिट्स आपको यूज करनी है उसका टेबल भी है पर्टिकुलर, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इन सब का क्या आपकी यूनिट्स है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है, ये टेबल है। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन the table in your notebook। okay, yes, so आपकी स्पीड को मेजर करने के लिए तो आपको पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। ये हम मैनुअली मेजर किए, जब आपको और मुझे पता करना है तो हम कैलकुलेशन करके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ डिवाइसेस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड के लिए आपने अपनी कार में या अपनी एक्टिवा, स्कूटी, बाइक्स वगैरह में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में, थ्री व्हीलर्स में देखा होगा कि स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर मीन्स द डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो हमारी कार्स हैं, ठीक है, बाइक्स है, ये सब आपकी कैसे है, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करती है किसमें, किलोमीटर में ट्रेवल करती है। सो आपकी जो मेजरमेंट है वो किसमें होगी, किलोमीटर पर आवर। उसमें हम आपका मीटर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो स्पीडोमीटर में जो आपकी स्पीड है वो किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर स्पीडोमीटर। लुक एट दिस पिक्चर, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर इस तरीके से बना होता होगा, आपने देखा होगा अपने बाइक में। ठीक है, तो आप बोलते हैं ना मम्मा 40 की स्पीड से चलाओ, 60 की स्पीड से चलाओ, तो ये कैसे देखते हैं आप, ठीक है, उस स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट इज योर ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या होता है, व्हाट इज ओडोमीटर? ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। ओके, अब डिस्टेंस कितनी मेजर किया, आपने देखा होगा, ये सेंटर पे इसे देखिए, ये क्या दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, इसमें किलोमीटर बताते जाता है कि आपकी जो गाड़ी है इतने किलोमीटर अब तक के वो क्या कर चुकी है, ट्रैवल कर चुकी है, इतनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है। सो दिस इज योर ओडोमीटर। वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। सो ओडोमीटर इज to measure the distance and speedometer is to measure the speed in kilometer per hour। okay, now one more method is there। तो देखिए, डिवाइसेस से तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइसेस में ऑटोमेटिकली आपका मेजरमेंट होता रहता है, ऑटोमेटिक मेजरमेंट। नेक्स्ट हम मैनुअली किए थे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए, अगर हमको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, हमको टाइम पता है कि हमने 8 o'clock को मैं घर से निकली, अब मैं स्कूल कब पहुंची, 8:30 को, और मुझे अपने घर से स्कूल के बीच के डिस्टेंस पता है। ठीक है, और मुझे टाइम भी पता चल गया कि 8 AM को मैं निकली थी और 8:30 को स्कूल पहुंची थी, मतलब 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को मैं सेकेंड में बदल लूंगी, और जो मेरी क्या है, आपकी स्पीड है, आपकी डिस्टेंस है कि मेरे घर से स्कूल के बीच के डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ठीक है, और मुझे कितना लगा, हाफ एन आवर लगा। तो मैं डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले से उसमें रख के स्पीड निकाल सकती हूँ कि मैं कितनी स्पीड में स्कूल पहुंचती हूँ। ओके, गेटिंग? एंड द थर्ड मेथड आपकी और कौन से तरीके है जिससे हम मैनुअली, ये भी आपकी मैनुअली हम ही करते हैं, बट इट इज अ ग्राफ मेथड। ठीक है, इसमें हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से हम आपकी स्पीड मेजर करेंगे। इसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको फर्स्ट हमने स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया, सेकेंड
आपके पास जो डिवाइस है स्पीडोमीटर है तो डायरेक्टली स्पीड मेजर हो गई। थर्ड, आपको फॉर्मूले में तो नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स जरूर यूज होंगे। तो वैसे तो ग्राफ्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ, या आपने स्टडी किया होगा मैथमेटिक्स में, बार ग्राफ बनता है आपका, पाई चार्ट बनता है, ठीक है, और ये लाइन ग्राफ बनता है। तो दिस इज योर ग्राफ पेपर, ये लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो हाउ टू calculate the speed using this graph method. Okay, so the distance traveled by a car and the time taken is shown in the table below. अब देखिए, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपकी क्या क्या दिख रहा है, आपका सीरियल नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखिए, टाइम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, 0 टाइम था हमारा, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं। 1 मिनट के बाद 1 मिनट में हमने कितना किया, 1 किलोमीटर। फिर से एक और 1 मिनट, मतलब अब हम 1 मिनट तो ट्रेवल किए थे, अब फिर से एक और 1 मिनट, मतलब 2 मिनट हो गए, हमने 2 किलोमीटर चल लिया। यहाँ पर कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड है 3 मिनट, ठीक है, अब फर्स्ट 1 मिनट चले, फिर एक और आगे 1 मिनट चले, अब हम कितने मिनट चल रहे हैं, सीधे 3 मिनट। 3 मिनट में हमने कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर। 4 मिनट 4 किलोमीटर, 5 मिनट 5 किलोमीटर। आई थिंक इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना, इट मस्ट बी 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। मीन्स हर एक मिनट में हम कितना कितना ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, 1 किलोमीटर। ओके, सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन, हम यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं। ओके, सो if the distance time graph is a straight line, then the object is moving with constant speed. If the speed keeps changing, the graph can be of any shape. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनता है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर, यू ऑल नो, यू हैव ऑलरेडी डन in your mathematics subject how to draw the graph, but I will explain you in brief. Okay, तो आपका एक जो नीचे 2 एक्सिस होते हैं ग्राफ के, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। तो हम कौन सा क्वाड्रेंट यूज करते हैं, आपका पॉजिटिव, जिसमें x भी प्लस होता है y भी प्लस होता है, क्योंकि कभी भी जो आपकी डिस्टेंस है, हमेशा डिस्टेंस किस में होगी, क्या हम लेंथ को नेगेटिव में मेजर कर सकते हैं, नेवर। आपकी जो डिस्टेंस होगी, वो लेंथ होगी, वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में। आपका टाइम कैसा होगा, टाइम भी हमेशा किस में होगा, आपका पॉजिटिव। कभी सुने, है ना, -2 PM या -3 किलोमीटर ट्रेवल किया, वो नॉट पॉसिबल ना। सो आपका जो आपका एक्स क्वाड्रेंट है, वाई क्वाड्रेंट है, दोनों कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। ओके, सो आपको एक्स में क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, टाइम लेना है, टाइम इन मिनट्स। एंड वाई एक्सिस में क्या लेना है आपको, डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो भी आपकी टेबल पे बना हुआ है। ओके, जैसे कि आपकी टेबल पे बना हुआ है, देखिए टाइम मिनट्स में बना हुआ है, तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम इन मिनट्स, और वाई पे क्या लिया हमने, डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब हम स्केल डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपको स्केल कैसे डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये आपका ग्राफ बनाते हैं, पहले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको हमने 1 सेंटीमीटर का होता है आपका, ठीक है, ये रहा। अब मेरे को यहाँ टाइम लेना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 0 0 है, ये 0, ये 1 मिनट है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ओके, सो ऑन। अब यहाँ पे डिस्टेंस लिखूंगी मैं, यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लाइक दैट। ओके, तो दिस इज योर ग्राफ। सो अब हम इसमें पॉइंट कैसे डालेंगे, आपके टेबल में क्या बना हुआ है बेटा, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो आई विल एक्सप्लेन यू द सेम थिंग in my live class, okay, so that you can understand better these concepts, that how to draw a graph and how to measure the speed. So x, this is your x, this is your y, 0 1 1 2 3 4 5. Now look at the table.
1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये आपका यहाँ पर आपकी 1 किलोमीटर पूरी किलोमीटर है और यहाँ पर क्या है आपका मिनट। सो आपकी 1 से यहाँ तक पॉइंट ले गए, कहाँ तक 1 किलोमीटर तक पैरेलल लाइन। यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला, एक मुझे यहाँ पर क्या मिला, ठीक है, एक डॉट यहाँ मिली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड 2 किलोमीटर में कितना ट्रेवल किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे सेकेंड पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। नेक्स्ट है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर बना और यहाँ से भी 3 लिए, 3 मिनट, यहाँ से 3 मिनट लिए, यहाँ से 3 किलोमीटर। दोनों लाइन को जब हमने ज्वाइन किया तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट इज हमने 4 लिया, 4 मिनट और यहाँ से हमने 4 किलोमीटर से स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं एंड वाई एक्सिस के पैरेलल। आई नो, है ना, एज आई नो ऑल अबाउट यू that you understand, है ना, how to draw the graph properly, but actually I have to explain, then that's why I'm explaining. So this is your what graph. So you are getting all these points. अब हमें ये points मिल गए हैं. Now let's draw the line. ठीक है, अब हम इन points को 0 0 से start करेंगे और join करते हुए एक line draw करेंगे. So this is your line. Okay, so which type of line this is? This is a straight line. So as I have read that when you get a straight line, so straight line means the speed is in uniform motion, or it is the car is traveling in a uniform motion, constant speed है uniform motion में। और अगर आपकी ग्राफ कैसा मिला आपको, ग्राफ अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई लाइन मिल जाती या कोई भी अलग शेप में मिल जाता, देन जो आपकी जो स्पीड होती वो किस में होती, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एनी डाउट? सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट स्पीड्स, आइदर इज इट व्हाट, आइदर इट इज नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। ये तो बहुत ही सिंपल ग्राफ था, ठीक है, कि जिसमें आपको 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, और सिंपल आप ग्राफ में स्केल कैसे ले सकते हैं, स्केल कैसे लेना आपको, जो 1 सेंटीमीटर है एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर, वो आपका 1 मिनट को शो करा है इन स्केल एक्स एक्सिस। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, एंड वाई एक्सिस पे जो स्केल होगी आपकी वो होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। लेकिन आपको इतनी इजी वैल्यूज नहीं मिलेगी, कभी कभी आपको कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज मिल सकती है। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में लिख दिया 23 किलोमीटर, ठीक है, 4 मिनट में 28 किलोमीटर, देन आपको लिख दिया कि 6 मिनट में 50 किलोमीटर। देन यू हैव टू चूज, है ना, आपको चूज करना है कि ऐसी स्केल लें कि आपकी सारी एक्स एक्सिस पे भी सारे अच्छे से पॉइंट्स मिल सके इजिली, एंड वाई एक्सिस पे भी। और एक चीज और होती है, आपको जो ग्राफ पेपर है बेटा, है ना, ग्राफ को भी ड्रॉ करने के रूल्स होते हैं। आपका ग्राफ पेपर अच्छे से कवर होनी चाहिए, स्केल एकदम सुटेबल चूज करना है आपको, एक्स स्पेस पे एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना है, एंड वाई एक्सिस पे आपको अदर जो आपकी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है यहाँ पर, है ना, और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका टाइम होगा। हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर स्पीड। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, and thank you very much dear students. If you have any doubt, don't forget to comment me or message me. Okay, so thank you.